Hello dear students, as we have discussed in our last video what is the rank of a matrix, and it is defined as the order of the largest non-singular submatrix existing in a given matrix. Then but this and we have found the rank of some matrices using the direct definition of the rank, but it is very difficult to find the rank of each and every matrix by using the definition of the rank. So there are some methods which can be easily adopted, and they are very easy to use to find the rank of the matrix. But before going to those methods, let us discuss about some basic concepts about the matrix. The first is elementary operations. What are elementary operations? So there are three elementary operations for rows and columns. The first is, let we have, this is a row, this is a matrix like 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10 11 3. This is a matrix. This is first row R1, this is second row R2, this is third row R3. So therefore in matrix we can change or interchange two rows by each other. Like R1 can be interchanged by R2, then we will replace R1 by R2 and R2 by R1. So this is the first elementary operation for the rows of a matrix, that is Ri can be interchanged by Rj. Any row can be interchanged with second row. So this is the first elementary operation. The second one is, we can multiply any row by any non-zero constant and replace the original one with the obtaining rows. Like if we multiply this row R1 by 3 and we replace this R1 by that row obtained by multiplying it 3. So this is an elementary operation, that is we can multiply this row by any non-zero element. So therefore we can have Ri implies by K into Ri. Like we can multiply it by 3, then the new matrix will be 3 6 9 21 4 5 6 8. This row and this row will remain same. So this is the second elementary operation or transformation. We call them operation or transformation. Similarly, the third operation is that we can multiply a row by certain constant other than 0 and add to any other row and replace this row by this summation. Like if we multiply R3 by 4, that is 4R3, and R2 is added, R2 plus 4R3, then it will be written at the place of R2. So therefore this is also an elementary operation, like Ri implies Ri plus K into Rj. So these are three elementary row operation or R transformation, elementary R transformation. Similarly, in the parallel of these three, there are three corresponding column elementary transformation for columns, and they are similar, like Ci is interchanged with Cj. Second, any Ci is implied by Kci. The third is Ci can be implied by Ci plus Kcj. So these are elementary E row transformation, and these are called E
column transformation. So I think you are aware of these elementary operations. The second is elementary matrix. Elementary matrices. What is elementary matrices? I think you know it very well that this is an identity matrix. 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. This is an identity matrix. If we apply any single elementary operation, either row transformation or column transformation, single, that means यदि हम इस पर केवल एक इस पर ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, केवल एक, तो हमको एक नई मैट्रिक्स मिलती है. जैसे कि हमने इसमें लगाया कि R2 इंप्लाइज बाई 4R2, दैट मीन्स हमने इस R2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, तो हमें नई मैट्रिक्स मिल गई, मैट्रिक्स A, एंड दैट इज इक्वल टू 1 0 0 0 4 0 0 0 1. Then this is also a matrix. This is an elementary matrix. Therefore, a matrix which can be obtained from unit matrix by applying only one elementary operation, whether it is row transformation or column transformation. For example, जैसे हमने इसमें ही ये कर दिया R2 minus R1 implies R2, then it becomes and gives us new matrix. This is 1 0 0 R2 minus R1. R2 minus R1 implies 0 1 0. This is minus 1. R2 minus R1, and this is 0 0 1. So therefore this is also an elementary matrix. Therefore this A and B are elementary matrix. तो इस प्रकार से यदि हम किसी यूनिट मैट्रिक्स के पर केवल एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए तो जो मैट्रिक्स भी हम प्राप्त करेंगे वो क्या होगी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स. अब हम रैंक से इसको कैसे वो करते हैं, तो एक यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम किसी मैट्रिक्स पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, चाहे वो रो ऑपरेशन हो चाहे वो कॉलम ऑपरेशन हो, तो मैट्रिक्स तो चेंज हो जाती है, मैट्रिक्स के एलिमेंट चेंज हो जाती है, तो मैट्रिक्स इक्वल तो रहती नहीं, तो फिर क्या क्या चीज उसमें सेम रहती है. तो आइए ये नोट करने वाली बात है क्या कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट एलिमेंट्री ऑपरेशन डू नॉट change the rank of a matrix. क्या मतलब कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हम उस मैट्रिक्स पर कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दे, रो में रो जोड़ दे, कॉलम में कॉलम जोड़ दे, कुछ भी कर दे, तो उसकी जो रैंक है वो रैंक चेंज नहीं होगी, रैंक मेंटेन रहेगी आफ्टर अप्लाइंग अ चेन ऑफ ऑपरेशन. एक ऑपरेशन नहीं, चाहे हम कितनी बार भी उस पर ऑपरेशन लगाए, एक चेन बना ले ऑपरेशन की. पहले हमने एक मैट्रिक्स ली, उसमें कोई रो ऑपरेशन लगाया, फिर हमने उस मैट्रिक्स पर कोई रो ऑपरेशन लगाया, फिर हमने उस मैट्रिक्स पर कोई कॉलम ऑपरेशन लगाए, तो जो भी नई मैट्रिक्स आती जाएगी उन सभी की रैंक सेम रहेगी आपकी स्टार्टिंग मैट्रिक्स से लास्ट मैट्रिक्स तक. इस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशंस डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं करते हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है. एक दूसरी चीज जो आप यहां पर नोट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट, जब हम किसी मैट्रिक्स पर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कोई भी अप्लाई कर देते हैं, तो आप जानते हैं मैट्रिक्स इक्वल तो रहती नहीं, लेकिन जो भी मैट्रिक्स बनती है वो उसके इक्विवेलेंट रहती है, इक्विवेलेंट. तो अ मैट्रिक्स A is equivalent
to a matrix B if B can be obtained by a finite chain of elementary operation on A। यदि हम A पर A B के इक्विवेलेंट कब कहलाती है या B A के इक्विवेलेंट कब कहलाती है कि जब हम A पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते चले जाएं और क्या प्राप्त कर ले B। इसका मतलब B कैन बी ऑब्टेन बाय फाइनाइट चेन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हम कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं एंड इज डिनोटेड बाय A इक्विवेलेंट B। हम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं। अभी आपने नोट किया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन पर एलिमेंट्री ऑपरेशन से रैंक चेंज नहीं होती। और अभी आपने देखा कि बी ए के इक्विवेलेंट है यदि इनके बीच में क्या लगे हों, बी तक आने में, ए से बी तक पहुंचने में आपको बीच में क्या यूज किए हुए हों, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या नहीं चेंज हुई होगी, आपकी रैंक। तो इसका मतलब हुआ कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होगी, रैंक ऑफ बी के। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की आपकी बनती है कि यदि ए और बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है तो उनकी रैंक क्या होगी, आपकी सेम होगी। दूसरे सेंस में हम यहां नोट करते हैं यदि हमें ये शो करना है कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी, कि ए बी के इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए यदि आप यहीं से कंक्लूड करें। सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी। ऑर्डर सेम होना चाहिए और रैंक सेम होना चाहिए। यदि दोनों चीजें हैं तो ए और बी क्या होगी, आपकी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होगी, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होगी। तो आइए अब ये कुछ एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट हुए आपके मैट्रिक्स के। आपने देखा यहाँ पर सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है कि हम जब एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं तो नई जो मैट्रिक्स आती है वो पुरानी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होती है और उसकी रैंक पुरानी मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल होती है। आइए अब हम सीखते हैं वो दो मेथड जिनके द्वारा हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ there are two forms of matrices which can be used to find the rank of a matrix। सबसे पहली फॉर्म आती है आपके पास में एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म, ये फॉर्म किस टाइप की होती है, आखिर कोई मैट्रिक्स कब कहलाएगी एक्लन फॉर्म में, आखिर उसका रूप कैसा होगा मैट्रिक्स का कि वो कहलाएगी एक्लन फॉर्म में। तो आइए देखते हैं कैसा होगा। देखिए सबसे पहले तो एक्लन फॉर्म में वो रो जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो, जैसे कि उसको क्या बोल दिया, जीरो रो, वो सबसे नीचे होनी चाहिए, सबसे नीचे। दो रो हो ऐसी, दो जीरो रो हो तो वे भी सबसे नीचे होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी बात आती है कि एक्लन फॉर्म में कब कहलाती है मैट्रिक्स, कि आप इसमें देखते हैं यदि आप इसमें फर्स्ट रो देखो तो फर्स्ट रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट आया वो ये है। इससे पहले कितनी जीरो आई, 1 सिंगल, ये फर्स्ट रो है। इससे नीचे जो रो आई उसमें जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट आया है वो 2 है, उससे पहले कितनी जीरो है, 3। फिर इससे नीचे जो रो आई उसमें जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट आया वो 4, उससे पहले कितनी जीरो आई, 4। तो ये एक्लन फॉर्म है। अब आप समझ गए होंगे एक्लन फॉर्म में वो रो ऊपर होती है जिस रो में नॉन जीरो एलिमेंट से पहले आने वाली नंबर ऑफ जीरो अपनी नीचे की रो से कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ जीरो से कम हो। जैसे इसमें नॉन जीरो से पहले केवल 1 जीरो है, इसमें नॉन जीरो से पहले 3 जीरो है, तो ये रो इससे ऊपर है। सिमिलरली इसमें अब सेकंड रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट से पहले नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 3 हैं, और इससे नीचे जो ये नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 4 है, वो इसके नीचे है।
इस तरह की यदि आपके मैट्रिक्स में फॉर्म है तो वो किस फॉर्म में कहलाएगी? आपकी मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में। आप समझ गए होंगे। तो एक्लन फॉर्म में जब आपकी मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में आ जाती है, इस रूप में आ जाती है, इसको कैसे बदलते हैं किसी मैट्रिक्स को वो हम बाद में अभी सीखेंगे। लेकिन जब एक्लन फॉर्म में आ जाती है आपकी मैट्रिक्स, तो उसकी जो रैंक होती है एक्लन फॉर्म में जो मैट्रिक्स होती है, उसकी जो रैंक होती है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म। इसमें कितनी रो जो है नॉन जीरो है? नॉन जीरो रो, यदि किसी रो में एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो वो रो कहलाती है नॉन जीरो रो। यदि किसी के सारे एलिमेंट जीरो है तब वो कहलाती है जीरो रो। जैसे कि इस मैट्रिक्स में ये नॉन जीरो रो है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट आ गए नॉन जीरो, ये नॉन जीरो रो है क्योंकि 2 एलिमेंट आ गए नॉन जीरो, ये नॉन जीरो रो है क्योंकि 1 एलिमेंट आ गया नॉन जीरो, ये जीरो रो हो गई क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट जीरो है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो ऐसी है जो नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी। तो इसकी रैंक हम कितने लिख देंगे? आपकी यहाँ पर 3, जितनी नॉन जीरो रो। मान लीजिए यहाँ पर भी जीरो होता तो ये भी जीरो रो हो गई थी, तो तब इसकी रैंक कितनी हो जाती? 2 हो जाती। तो इस तरह से एक्लन फॉर्म में यदि मैट्रिक्स रिड्यूस्ड हो जाती है, एक्लन फॉर्म में कोई मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक जो होगी वो उसमें जितनी नॉन जीरो रो है उसके इक्वल होगी। ये पहली फॉर्म हुई एक्लन फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जो आप यहाँ पर देखते हैं, सेकेंड फॉर्म जो देखते हैं आप, वो सेकेंड फॉर्म है आपकी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आप देखते हैं कि ये आपकी मैट्रिक्स है और ये जो कॉर्नर है मैट्रिक्स का, ये जो कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर में आप देखते हैं कि इस मैट्रिक्स बी में इस कॉर्नर में एक यूनिट मैट्रिक्स बनी हुई है। यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स या कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनी है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बनी है 3 ऑर्डर की, तो हमने इसको लिख दिया I3। इससे इधर जो बची ये मैट्रिक्स, ये टोटल जीरो मैट्रिक्स हो गई। हमने इसको लिख दिया जीरो। दिस जीरो इज नॉट ए सिंगल जीरो, इट इज ए जीरो मैट्रिक्स। कितने भी रो हो, कितने भी कॉलम हो, केवल एक सिंगल जीरो मैट्रिक्स से इसको डिनोट कर लिया। इसके बाद इस आइडेंटिटी के नीचे जो बची ये मैट्रिक्स, ये भी कैसी मैट्रिक्स हो गई? जीरो मैट्रिक्स, इसको भी हमने जीरो लिख लिया। अब इसके बाद ये कॉर्नर पर बची हुई है, आप देखते हैं ये भी जीरो मैट्रिक्स, इसको भी जीरो मैट्रिक्स लिख लिया। इस तरह से आपकी इस मैट्रिक्स में ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है, इस पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके साइड में यदि कोई मैट्रिक्स है तो वो जीरो है, यदि कोई है उसके नीचे यदि कोई है तो वो जीरो है, उसके बीच में उसके कॉर्नर पर यदि कोई है तो वो जीरो है। जब आपकी मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो तो मैट्रिक्स कहलाती है आपके पास में नॉर्मल फॉर्म में। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। सिमिलरली सी मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये हो गया आपके पास में, ये I2 हो गया, 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स हो गई। टोटल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पर बन गई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। और इधर जो बची ये जीरो मैट्रिक्स बची, इसके नीचे कुछ नहीं बचा, आप देखते हैं। तो हमने नीचे लिखा भी नहीं, यहाँ पर लिखा I2 के साइड में एक जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स बस अपना क्लोज कर दिया ब्रैकेट्स के अंदर, ये मैट्रिक्स बन गई। ये आपके पास में क्या हो गई? नॉर्मल फॉर्म हो गई। इस तरह से आप देखते हैं। तो ये क्या कहलाती है? नॉर्मल फॉर्म, जिसमें कि एक इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है और उसके साइड में नीचे या कॉर्नर पर, दूसरे कॉर्नर पर सब जीरो मैट्रिक्स होती है, तो वो कहलाती है नॉर्मल फॉर्म। और जब आपकी मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में होती है तो उसकी रैंक कितना ईजी है? उसकी रैंक होती है नॉर्मल फॉर्म में, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म। जब कोई मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में हो तो उसके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है उसी का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, वही है उसकी रैंक। जैसे बी की रैंक कितनी हो गई? इसकी नॉर्मल फॉर्म ये है, बी नॉर्मल फॉर्म है, तो बी की रैंक कितनी हो गई? यहाँ 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, तो रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 3 हो गई। इसी तरह से सी की रैंक कितनी हो गई? सी में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है वो 2 ऑर्डर की आई है, 2 ऑर्डर की है, 2/2 की, 2 ऑर्डर की, तो रैंक ऑफ सी कितनी हो गई आपके पास में? 2 हो गई। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स की 2 तरह की फॉर्म, एक्लन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में यदि कोई मैट्रिक्स आ जाए तो उसकी रैंक हम बहुत इजीली देख सकते हैं। अब हमारा काम क्या है? यहाँ देखिए, हमारा कार्य है कि हम अपनी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में बदलें और फिर उसकी रैंक निकाल ले, या हम उसे नॉर्मल फॉर्म में बदलें और फिर उसकी रैंक निकाल ले। तो एक्लन फॉर्म में बदलने के लिए देखिए, हम केवल
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। ओनली एलिमेंट्री R transformation are allowed। केवल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमको अलाउड है, केवल हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं एक्लन फॉर्म में बदलने के लिए। कॉलम नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए हम कोई दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, बोथ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आर यूज्ड टू गेट नॉर्मल। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे। कैसे करते हैं उसको समझने के लिए आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्लन फॉर्म में हम अपनी मैट्रिक्स को कैसे बदलते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आइए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, यहाँ पर हुआ मान लीजिए 2, 4, 1, 3, यहाँ पर हुआ 3, यहाँ पर हुआ 7, यहाँ पर हुआ 1 और यहाँ पर हुआ मान लीजिए 2। ये हो गया। अब इस मैट्रिक्स को हमें एक्लन फॉर्म में बदलना है। तो देखिए, एक्लन फॉर्म में बदलने के लिए वैसे तो आपको पता है एक्लन फॉर्म क्या होती है, किस फॉर्म में एक्लन फॉर्म में कहलाती है, लेकिन एक नेट प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ कि आप उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग करिए, तो आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रैक पर रहेगा। वो आपका एक्लन फॉर्म में उन नेट ऑपरेशंस के द्वारा चेंज हो जाएगा। वैसे करने के लिए आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं जो एक्लन फॉर्म में बदलना है, लेकिन फिर भी तो सबसे पहला काम क्या करना है उसे ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हमारी ये मैट्रिक्स ए हो गई, इसको हमें एक्लन फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्लन फॉर्म में चेंज करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया मैट्रिक्स का, ये कॉर्नर जो हमारे पास अवेलेबल मैट्रिक्स है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया। कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आपका यूनिट एलिमेंट हो, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी है। यदि नहीं है तो इसके नीचे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसके नीचे देखो साइड के एलिमेंट की कहीं भी हेल्प नहीं लेनी है, क्योंकि ना ही हम ले सकते, क्योंकि इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज नहीं कर सकते, तो केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। तो उसके लिए देखिए, यहाँ ध्यान से सुनिए, सबसे पहले कोशिश कीजिए यहाँ 1 बन जाए। किसका यूज करके, या तो खुद यहाँ 1 हो या इसके नीचे कहीं 1 हो। 1 कहीं पर भी है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से उससे रो से चेंज कर दीजिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा। मान लो 1 नहीं है तो कोशिश कर लीजिए यहाँ पर 1 बनाने की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 होता है, यहाँ 3 और 2 है, तो इन दोनों को डिफरेंस करके 1 बन गया, फिर वो 1 यहाँ पर ले आए। तो कोशिश करिए यहाँ पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। और उसको बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पर एलिमेंट देखें, इस पूरी रो को देखें कि इसमें कहीं 1 है तो वो 1 यहाँ ले आए। यदि 1 नहीं है तो क्या हम किन्हीं 2 एलिमेंट के डिफरेंस से या उन दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा के कैसे भी यहाँ 1 बना सकते हैं। यदि 1 बन सकता है तो 1 यहाँ ले आइए। यदि ये सभी नंबर इवन है, सभी नंबर इवन है, तो सभी 2 के मल्टीप्लायर होंगे, तो आप सभी नंबर को पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तभी ये काम कर सकते हैं। या फिर किसी नंबर के मल्टीप्लायर है, जैसे यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, तो वो जिसके मल्टीप्लायर है वो नंबर यहाँ ले आइए। यहाँ 1 बनाना जरूरी नहीं है, वो केवल कैलकुलेशन का एक पार्ट है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो ये 2 यहाँ ले आइए, जिसके सभी मल्टीप्लायर है वो नंबर आप यहाँ ले आइए। तो इस तरह से सबसे पहली कोशिश है यहाँ पर 1 बनाने की, यहाँ 1 ऑलरेडी है। अब आपको क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इसके नीचे जो एलिमेंट है उनको 0 में रिड्यूस करना है। जैसे इस 2 को 0 करना है, किसकी हेल्प लेनी है, 1 को। तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया।
तो क्या बन जाएगा ये 0। देखो हेल्प हम किसकी ले रहे हैं 1 की, तो हमें जो भी मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन करना है, वो इस रो को करना है, इस रो की है, इसकी हेल्प से करना है, न कि जिसको हमें 0 करना है उसे मल्टीप्लाई करना है या कुछ भी। इस 2 को आपको 0 बनाना है, तो 2 को 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 हो गया, फिर उसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने ऑपरेशन लगाया यहाँ पर R2 माइनस 2R1 इम्प्लाइज R2। इसी तरह से इस 1 की हेल्प से यहाँ पर नीचे क्या बनाइए 0। तो जो आपने 1 बनाया है यहाँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर, अब इस एलिमेंट की हेल्प से आपको उसके नीचे सभी एलिमेंट को 0 में रिड्यूस करना है। बस ये आपको सीखना है कि जो मैट्रिक्स मेरे पास अवेलेबल है, ध्यान से सुनिए, जो मैट्रिक्स मेरे पास अवेलेबल है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, उस मैट्रिक्स का ये जो कॉर्नर है मुझे इसे नॉन जीरो बनाना है। नॉन जीरो बनाने के बाद कोशिश करनी है ये 1 बन जाए, 1 की हेल्प से नीचे सभी को 0 बना लेना है। और मान लीजिए ये सभी 0 होते तो फिर हम इसको छोड़ देते और ये मेरे पास अवेलेबल मैट्रिक्स हो गई थी, मैं इसमें वो ही काम करता, फिर इसको मैं भूल जाता। ये मैट्रिक्स हो गई थी, ये मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हो गया था और मैं यहाँ पर 1 बना था या जो भी करता वो इस मैट्रिक्स में काम करता। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बस यही इसका मूल मंत्र है कि आपने क्या किया, इस कॉर्नर पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर जो अवेलेबल मैट्रिक्स है उसके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर 1 बनाया, उस 1 की हेल्प से उसके नीचे सभी एलिमेंट्स को 0 में रिड्यूस कर लिया। इस 1 की हेल्प से 2 को रिड्यूस किया, इसका मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 0 हो जाएगा। इस 3 को भी 0 करना है तो उसके लिए आप इसे 3 से करोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑपरेशन बन जाएगा R3 माइनस 3R1 इम्प्लाइज R3। जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आप जानते हो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स चेंज होती है, लेकिन जो नई मैट्रिक्स आती है वो उसके इक्विवेलेंट होती है, तो आप यहाँ साइन लगाते हो इक्विवेलेंट का। ये मैट्रिक्स इसके इक्विवेलेंट है बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन दिस मैट्रिक्स। तो ये इसके इक्विवेलेंट हुई। अब क्या बनी नई मैट्रिक्स 1 2 3 4, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया आपके पास में 0। इसे 2 से सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया -5। इसे 2 से किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया आपके पास में -5। नाउ इसे 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, ये ऑपरेशन लगाया तो 3, ये 0 हो गया, 3 ये आपके पास में 1 हो गया, ये आपके पास में 3, ये आपके पास में -8 हो गया, ये 3 तो ये आपके पास में -10 हो गया। इस तरह से आपने इसमें ऑपरेशन लगाए और ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई। इस तरह से आपने क्या किया, अपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को 1 बनाया और 1 की हेल्प से नीचे क्या बना ली, सभी को 0 बना लिया आपने। तो इस तरह से ये फर्स्ट कॉलम का काम फिनिश हुआ। फर्स्ट कॉलम में यहाँ आपका जो भी नॉन जीरो एलिमेंट भी हो सकता है, 1 तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ उसकी हेल्प से 0 बनाना इजी हो जाता है। तो अब आप क्या करिए, अब आप इस कॉलम को भी और इस रो को भी अपने मन से भूल जाइए, छोड़ दीजिए। ये आपने बना लिया, इसके नीचे ये नॉन जीरो एलिमेंट और उसके नीचे क्या बन गए, 0 एलिमेंट। अब आप इस एलिमेंट से, इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जिस पर आपने काम किया है, इससे जाने वाली रो को और इससे जाने वाले कॉलम को आप छोड़ दीजिए। अब आपके पास में ये मैट्रिक्स बची, इस मैट्रिक्स को मन में लेते हुए वही काम दोहराइए जो अभी मैंने आपको बताया। ये क्या कि ये हो गया इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। यहां पर आप कोशिश करें 1 बनाने की, किसके हेल्प से, अपने नीचे के एलिमेंट के हेल्प से। ये अब आपके पास अवेलेबल नहीं है, केवल इतनी मैट्रिक्स अवेलेबल है। तो यदि यहां पर भी 0 होता तो हम पूरा इसको भी छोड़ देते, ये मैट्रिक्स बचती, हम उसमें वही काम करते कि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, इस पर हम कोशिश करते 1 बनाने की, 1 की हेल्प से फिर नीचे 0 बनाने की। तो आइए अब हम फिर से वही काम करते हैं। देखिए ये रो और ये कॉलम हम छोड़ चुके, अब मेरे पास ये मैट्रिक्स अवेलेबल है, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं करना है, मैं केवल दिखा रहा हूं, ये मैट्रिक्स अवेलेबल है जिसमें मुझे काम करना है। तो मुझे अब इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर क्या लाना है, नॉन जीरो एलिमेंट। वो लाया जा सकता है क्योंकि इसके नीचे है नॉन जीरो एलिमेंट, और वो
1 है और भी अच्छा है कि 1 बना लें हम। तो इसको यहाँ पर लाते हैं, उसके लिए ऑपरेशन लगाया आपने R2 इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई R3। तो ये बन गया आपके पास में 1 2 3 4 0 0, ये चेंज हो गया 1 -8 -10 0 -5 -10, सॉरी -5। ये मैट्रिक्स बन गई। अब आपने देखा कि इस तरह से इस मैट्रिक्स में जिसमें हम काम कर रहे थे, इस मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 के हेल्प से नीचे क्या बनानी थी हमें? 0। यदि यहाँ 2 होता तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते और उसके हेल्प से क्या बनाते इसको? 0। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, तो इस तरह से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेरा बन गया नॉन जीरो और उसके नीचे सभी जगह क्या बन गई? 0। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स में भी वही काम हो गया। तो अब आप इसको भी छोड़ दीजिए। अब आपके पास में ये बची मैट्रिक्स, ये हो गया इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब इसके नीचे यदि कोई होता तो हमें उसे क्या बनाना था? 0, लेकिन नीचे इसके कुछ भी नहीं है। तो अब यहीं पर रुक जाते हैं। यही होगी मेरी एक्लन फॉर्म, आपकी मैट्रिक्स की एक्लन फॉर्म। आपकी ये जो मैट्रिक्स है ये किस में है? एक्लन फॉर्म में, विच इज इन एक्लन फॉर्म, सॉरी आप देख सकते हैं ये एक्लन फॉर्म में है। इसमें आपने देखा फर्स्ट में नॉन जीरो ये है, इससे पहले कोई जीरो नहीं है। इसमें नॉन जीरो ये है, इससे पहले 1 जीरो है। इसमें नॉन जीरो ये है, इससे पहले 2 जीरो है। तो इस तरह से एक्लन फॉर्म बन गई। और एक्लन फॉर्म में आप जानते हैं कि एक्लन फॉर्म में जब कोई मैट्रिक्स होती है तो उसकी रैंक जो होती है उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के इक्वल होती है। तो इसकी रैंक कितनी हो गई? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के, यानी कि 3 हो गई। और आप देख रहे हैं मेरी जो ए मैट्रिक्स है वो इसके इक्वलेंट है। और जब 2 मैट्रिक्स इक्वलेंट होती है तो उनकी रैंक सेम होती है। तो ए की रैंक भी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इस तरह से रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म, सो दैट इज इक्वल टू 3। तो रैंक ऑफ ए कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इस तरह से हम अपनी मैट्रिक्स को कहीं में बदल सकते हैं, एक्लन फॉर्म में बदल सकते हैं और फिर हम उसकी रैंक निकाल सकते हैं। हम और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी आप इसको दोहरा सकते हैं इस मेथड को कुछ क्वेश्चन लेकर। तो अभी और भी हम इन दोनों फॉर्म में क्वेश्चन को करेंगे, नॉर्मल फॉर्म से भी और एक्लन फॉर्म से भी। थैंक यू, वो हम अगली वीडियो में